Okay, students, welcome back. This is Dr. Shubkhair here again. We will start a discussion on cardiac arrhythmias today. आवाज I स्लो है think सर। आवाज लो है. थोड़ा सा माइक जरा मुंह के पास कर। पास कर लूं. अब बेहतर है. ओके। Okay, so students, today we will start a discussion on cardiac arrhythmias and their electrocardiographic representation or interpretation. Right? So, first of all, we will go through the general causes of cardiac. What do we actually mean by an arrhythmia? Arrhythmia means something when the heart goes out of its normal rhythm. So that means arrhythmia, right? The heart goes out of its normal rhythm. So that is arrhythmia. Now, it can be due to the abnormal rhythmicity of the pacemaker. And what is the pacemaker of the heart? SA node, right? So there can be a problem with the SA node, the original pacemaker of the heart, right? It can be that, or it can be a shift of the pacemaker from the SA node to another point in the heart, which we call as the ectopic pacemaker. Whenever some other part of the heart takes the responsibility of generating impulses, so we call that part of the heart as ectopic pacemaker because the original pacemaker is SA node, right? Now, or there can be no problem with the SA node, or there is no other ectopic pacemaker, but there are different blocks. There are different points in where there are blocks and in the spread of the impulse throughout the heart. It can be anywhere. It can be at AV node. It can be in the bundle branches. It can be in the bundle of His. It can be anywhere, right? So there are certain blocks as well, and some of these blocks we will study today as well, right? So these are the three general causes of cardiac arrhythmias. And why do they arise? Why do they start the cardiac arrhythmias? Now, uh, abnormal pathways of impulses transmission through the heart. The normal pathway, impulse conduction pathway, you know that SA node, um, internodal fibers, then AV node, then bundle of His, then bundle branches, and then Purkinje fibers, right? So there can be some other abnormal pathways, development of some other abnormal pathways, and that can lead to arrhythmias, right? Or spontaneous generation of spurious impulses in almost any part of the heart. That means that everything is going all right, but just out of the blue, a small a small disparity or a small arrhythmia arises. The impulses, they start either too strongly, too rapidly, or they go down very slowly, right? So that's the spontaneous generation of spurious impulses in almost any part of the heart. That means that these impulses are being generated. No, it's okay, everything is okay, but just out of the blue, suddenly there is spontaneous generation of these impulses, and these can lead to arrhythmias. So these are basically the five reasons, general reasons, that the arrhythmias can arise. And as we will take the arrhythmias one by one, we will we will get to know their specific reasons as well. Okay. Okay. So what is abnormal sinus rhythm? What is sinus rhythm? Sinus rhythm is the rhythm which is being created by SA node, generated by, okay, sorry, I didn't make the full screen. Okay, so abnormal sinus rhythms. So what is the sinus rhythm? The normal sinus rhythm, and that's the rhythm which is generated by the SA node. And we know that it is between somewhere 60 to 100, right? That is the rhythm generated by the SA node. And abnormal sinus rhythm means that the SA node is either not working properly, or there are certain blocks, or there are certain spurious, spontaneous generation of impulses, the reasons that we have just studied. Any one of those reasons can cause these abnormal sinus rhythms. So moving on,
So what are these abnormal sinus rhythms? As I told you, either it's too fast a heartbeat or too slow a heartbeat. When it's too fast, we call it tachycardia. When it's too slow, we call it bradycardia. And how do we measure, or how do we define that this is slow and this is fast? Anything above 100 beats per minute is tachycardia, is fast. Anything below 60 beats per minute is bradycardia, that is slow, right? So that is the definition of tachycardia and bradycardia. Now, in the top diagram, in this diagram, in the top curve, we have sinus tachycardia. That means that the distance between the RR intervals is less than normal. The distance between the RR intervals is rather the distance between the two R peaks, that is RR interval, is less than normal. Just like this, over this and this, this and this. So it's a regular pattern, and all the distances almost are the same between the two R peaks. So that means it is a general state of tachycardia. The heart is, because the less the RR interval, the more the heart rate, right? I think we did it when we calculated the heart rate on the basis of RR interval. So by that we know, by now we should know that the less the cardiac interval, the less the RR interval, the more the heart rate, right? The less the RR interval, the more the heart rate, and the more the RR interval, less the heart rate. And so when the RR interval is less, it is tachycardia. When the RR interval is more, as in this diagram, the diagram on the below on the screen, so this is bradycardia, right? Okay. Now, just I know you have done this already, but just to have a quick look at the nerve supply of the heart, specifically through the sympathetic and parasympathetic system. What we see is that the parasympathetic system, which is mainly supplied by the vagus, two vagus, so it is actually controlling, the vagus are actually controlling the SC node and the AV node, and it has got very, very little effect on the musculature of the heart, right? On the other hand, the sympathetic supply, which is coming from these sympathetic chains, this supply, it is mainly on the myocardium, and it is on the SC node as well, right? So that is why we say that when there is a parasympathetic stimulation, the heart rate is the one which is most affected, and the change in the contraction, the force of contraction of the heart is minimal. On the other hand, when there is a sympathetic stimulation, not only the force of the contraction of the cardiac muscle increases, but also the heart rate increases due to the fact that it also supplies the SC node, right? So that you know, I know already, so that I just wanted to repeat it. Okay. Now, what is carotid sinus syndrome? It is that we have got excessively sensitive pressure receptors, baroreceptors, which are present in the carotid sinus region of the carotid artery walls. In the carotid sinus region of the carotid artery wall, that is in the neck, right? That is in the neck. Okay, so mild external pressure on the neck elicits a strong baroreceptor reflex. Mild external pressure on the neck elicits a strong baroreceptor reflex, because what we do is, when we apply a mild pressure on the neck on the carotid arteries, right? So what we do actually is that we stimulate the baroreceptors, and that result in intense vagal acetylcholine effects on the heart, including extreme bradycardia. And it can stop, and if it is very severe, it can stop the heart for 5 to 10 seconds. And that is why they always say that if you are doing some massage of the neck, or doing some, or you're trying to get the pulse from the carotid artery, do not do it from the both sides at one time, simultaneously. Do it just from the one side.
so that the stimulation should not be that strong that it should reduce the heart rate to so much that it might stop, right? So that is known as carotid sinus syndrome. Okay, and this carotid sinus massage is one of the methods that is used when we have extreme fast heart rates in tachycardia, right? So this is one of the maneuvers that can be done, or this is one of the methods that can be used to decrease the heart rate when it is going very fast, right? One of the methods, not the only method, one of the methods. So what happens is, actually, I don't know that you have, I don't think rather that you have gone through the baroreceptors, because that is in the 18th chapter. So you haven't reached there yet, but just to give you an introduction, the baroreceptors basically, they would, they actually are responsible for the, not only for the heart rate, but they are also responsible for the, they actually are responsible for the maintenance of the moment to moment changes in the blood pressure, to maintain those, to regulate the moment to moment changes in blood pressure. So whenever we will excite them, whenever we will stimulate them, so what will happen, that they will stimulate the vagal acetylcholine effect, the vagal acetylcholine effects, and that would be the parasympathetic effects. And we know that the parasympathetics, they reduce the heart rate quite effectively, right? Okay. Respiratory sinus arrhythmias, what do we mean by those? Actually, what we mean by this is that when we inspire, the heart rate increases, and when we expire, the heart rate decreases. How does this happen? This is physiological. This is not pathological. This is something which is physiological, not because we are breathing all the time. We are inspiring and expiring all the time. So with each inspiration, the heart rate mildly goes up, and with each expiration, the heart rate mildly goes down, right? And this is physiological. Okay, how does it happen? This is a diagram. Before we go on to the mechanism, this is the diagram showing inspiration, and this is another diagram showing expiration. अम्मार असगर, समझ नहीं आ रही ये है क्या? ये बेटा रिदमियाज हैं. What else are you looking for here? Anybody else who is not getting it? Please write it down. Okay. Okay, I think that's enough then. I'll start it again. Urdu में introduction दे. Okay. That's a weird thing. Okay, I can do that. Chapter कौन सा है? वाह, माशाल्लाह. बेटा ये 13th chapter है. Thank God somebody has written it. बेटा ये तो आप मुझे इम्तिहान में डाल दोगे इस तरह. Very difficult for me, honestly. Very difficult for me, honestly. Okay, I'll try. I can give it a try. Let's start it all over again then. But remember that the terminologies are going to be in English. That I cannot change. And nobody can, I think, so far. Okay. I told you, मैं आपको बता रहा था कि हम कार्डियक एरिथमियाज की बात कर रहे हैं. एरिथमियाज का मतलब हुआ, A means not, ठीक है? इसका मतलब है रिदम नहीं है. Heart is not beating rhythmically. Heart rhythmically beat नहीं कर रहा.
एरिदमिया से बीट कर रहा है, सो इट इज आउट ऑफ इट्स नॉर्मल रिदम, ये अपने नॉर्मल रिदम से हट के बीट कर रहा है, ठीक है। नाउ एबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ द पेसमेकर, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं एरिदमियाज की? या तो ये कि जो आपका पेसमेकर एसए नोड है उसी का रिदम चेंज हो गया, जो उसका नॉर्मल रिदम था वो 60 to 100 वाला, उससे वो निकल गया, या उससे कम हो गया या उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट वाला, उससे या वो नीचे चला गया या उससे ऊपर चला गया, ओके। शिफ्ट ऑफ द पेसमेकर फ्रॉम एसए नोड टू अनदर पॉइंट इन द हार्ट, या ये है कि एसए नोड अपना काम कर ही नहीं रहा, ठीक है, और उसका पेसमेकर जो है वो शिफ्ट हो गया है कहीं और, उसे हम कहते हैं एक्टोपिक पेसमेकर, हार्ट में ही किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, उसे हम कहते हैं कि अगर एसए नोड की जगह कोई और टेक ओवर कर ले तो उसे हम कहते हैं कि इट्स एन एक्टोपिक पेसमेकर। तीसरी बात हो सकती है, ब्लॉक्स हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स थ्रू द हार्ट। इम्पल्स तो एसए नोड से स्टार्ट हुई, बट आफ्टर दैट देयर वर सर्टेन ब्लॉक्स इन द स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स थ्रू द हार्ट, जिसकी वजह से उस इम्पल्स की ट्रांसमिशन में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई और उसकी वजह से एरिथमियाज क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एबनॉर्मल पाथवेज ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू द हार्ट, कि एक जैसे पाथवे आपको पता है कि एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस, परकिंजे फाइबर्स, वेंट्रिकुलर मसल, ठीक है, ये पाथवे। अब इसमें अगर कहीं एबनॉर्मल पाथवेज डेवलप हो जाए और किसी और पाथवे से इंपल्सेस जानी शुरू हो जाएं इस ट्रेडिशनल पाथवे के अलावा, तो देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, फिर क्या होगा, एरिथमियाज ही होंगे ना, एबनॉर्मल रिदम आ जाएगा, नॉर्मल रिदम नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, पांचवी बात आ गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्पूरियस इंपल्सेस, कि अच्छा बड़ा सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बट सडनली स्पॉन्टेनियसली एक सेट ऑफ इंपल्सेस, एबनॉर्मल सेट ऑफ इंपल्सेस जो है वो जनरेट हो जाता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। व्हेन दैट हैपेंस तो फिर भी एरिथमियाज ही आएंगे, ठीक है। तो ये 5 जनरल रीजंस है एरिथमियाज प्रोड्यूस होने। एबनॉर्मल साइनस रिदम्स क्या है, जैसे अभी हमने बात की है, दो ही हो सकते हैं, या टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है, साइनस रिदम क्या है, द रिदम व्हिच इज बीइंग जनरेटेड बाय द एसए नोड, वो साइनस रिदम, ठीक है। एबनॉर्मल साइनस रिदम्स क्या है, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, वो क्या हो सकता है। टैकीकार्डिया इज व्हेन द हार्ट बीट इज 100 बीट्स पर ओवर 100 बीट्स पर मिनट, ब्रेडिकार्डिया इज व्हेन द हार्ट बीट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ओके। ये उसकी ग्राफिकल ईसीजी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टैकीकार्डिया की और ब्रेडिकार्डिया की। द अपर डायग्राम शोज टैकीकार्डिया, ठीक है, कैसे आरआर इंटरवल कम हुआ है इसकी निस्बत, ये निचली डायग्राम देखो आरआर इंटरवल कितना लंबा है, ठीक है, और ये ऊपर वाली डायग्राम देखो आरआर इंटरवल कितना छोटा है, ठीक है। सो दैट मींस कि जितना आरआर इंटरवल छोटा होगा, द स्मॉलर द आरआर इंटरवल, द मोर द हार्ट रेट वुड बी, और जितना ये आरआर इंटरवल लंबा होगा उतना हार्ट रेट कम होता जाएगा। सो दिस इज टैकीकार्डिया जिसमें आरआर इंटरवल छोटा है, एंड दिस इज ब्रेडिकार्डिया जिसमें आरआर इंटरवल लंबा है, ठीक है। बस इतनी बात है, और इसमें कोई, मैंने साइंस तो ऐसी बताई कोई नहीं थी, तुम पता नहीं, इफ यू स्टिल कैन नॉट गेट इट देन आई हैव माय हैंड्स अप। अच्छा, कमिंग टू दिस डायग्राम विच यू नो ऑलरेडी, क्योंकि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, 9th चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं ये डायग्राम, ठीक है। ये सिर्फ सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट है हार्ट रेट पे और उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे, दोनों पे। बेटा ये मुझे नहीं पता, यू नो दैम, आई डोंट नो, ठीक है। ये जो आपने लिखा है ना कि थर्सडे वाले टेस्ट में कौन से चैप्टर्स हैं, ऑनेस्टली आई डोंट नो, यू नीड टू चेक द मूडल, वहां पे सब कुछ दिया होगा, ओके। सो इसमें अगर हम ये देखें वेगा, इफ वी हैव अ लुक एट द वेगा, व्हाट आर वेगा डूइंग, दे आर सप्लाइंग एक्चुअली द एवी नोड एंड द एसए नोड, and there is a very little supply to the musculature around these, बहुत थोड़ा है musculature को supply, that is why इनका effect heart rate पे है वेगा, यानी कि parasympathetics का effect heart rate पे है, muscle contraction, force of muscle contraction पे minimal effect है, बहुत ही थोड़ा है, बहुत weak effect है। on the other hand जब हम sympathetics को देखते हैं तो what is happening in the sympathetics are they are mainly supplying the musculature,
but they have got a little bit of supply to the SA node as well. तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट हार्ट रेट पे भी आएगा और इसका इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे भी आएगा, दोनों पे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। नाउ कैरोटिड साइनस सिंड्रोम क्या है? अच्छा चलें, हम एक काम करते हैं, लीव आउट दिस कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, इसको हम बाद में करेंगे, ये इसकी बारी बाद में भी आ जाएगी। हम पहले करते हैं रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया क्या है। हमने कहा ये साइनस एरिथमिया मींस कि इट इज not the actual normal rhythm that is created by the, now what has happened, okay, अब समझ आ रही है, thank God, that what I can say। अच्छा, now physiological variation in heart rate with phases of respiration, जैसे जैसे रेस्पिरेशन की फेजेस आती हैं, दो ही फेजेस है ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है, दीज आर द टू फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो व्हाट वी से इज, और व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमियाज मींस कि इंस्पिरेशन में हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता है और एक्सपिरेशन में हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। अब देखना ये है कि जैसे ये डायग्राम बता रही है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो आरआर इंटरवल है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ये दो आरआर इंटरवल्स एक्सपिरेशन के हैं और ये जो पहले दो आरआर इंटरवल्स हैं, दीज आर फ्रॉम द inspiration. Now you can clearly see that the RR intervals in the inspiration, they are smaller as compared to the RR interval of the expiration. So that is why inspiration में heart rate थोड़ा सा तेज होगा, expiration में heart rate would be decreased, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म क्या है? तीन पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं कि why does this happen during, and this is physiological. Let me remind you, this is physiological, not pathological. क्योंकि ये हमारे हर ब्रेथ के साथ हो रहा है, ठीक है। विद ईच ब्रेथ, एवरी ब्रेथ वी टेक, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। ओके, सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पहला मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म, व्हाट हैपेंस दैट द इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल्स, जो इंस्पिरेटरी सिग्नल्स हैं वो इंस्पिरेटरी सेंटर से स्पिल ओवर होते हैं। They spill over from the inspiratory center to nearby vasomotor center और vasomotor center को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। अभी आपको मैं इतना ही इसके बारे में बता सकता हूँ। वेजोमोटर सेंटर इज अ सेंटर इन मेडुल्ला which controls heart rate and the sympathetic and parasympathetic activity as well, ठीक है, after getting signals from different parts of the circulation। अब ये पढ़ना आपने सर्कुलेशन में है बेसिकली भी जाके आप वेजोमोटर सेंटर, मैं भी आपको सिर्फ इसका इतना इंट्रोडक्शन दे सकता, ठीक है। सो जब इंस्पिरेशन होती है, जब हम इंस्पायर करते हैं एयर, तो इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिग्नल्स इंस्पिरेटरी सेंटर जो कहाँ पे है, मेडुल्ला में है, और वेजोमोटर सेंटर भी मेडुल्ला में ही है, ठीक है। ये उससे स्पिल ओवर होते हैं और ये वेजोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग्स एक्सपैंड, जब हम जाहिर है हम एयर अंदर लेके जाते हैं तो लंग एक्सपैंड करते हैं, दे एक्सपैंड, सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स आर स्टिमुलेटेड। लंग्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, दे आर स्टिमुलेटेड। Impulse from these receptors again go to the vasomotor center and they increase the heart rate. ये इसका दूसरा मैकेनिज्म है। तीसरा मैकेनिज्म is known as Bain bridge reflex। बहुत सारे बच्चे इसको फर्स्ट ईयर के एंड तक ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स लिखते हैं। इट इज नॉट ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, इट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, और वी आल्सो कॉल इट एट्रियल रिफ्लेक्स। क्यों? इसके भी आगे दो मैकेनिज्म है, ठीक है। एक मैकेनिज्म क्या है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव। इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव। ये अब आपने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ी, अगर आप दोनों प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर और जो है हमारा प्लूरल प्रेशर, अगर आप उसको देखेंगे जाके इंस्पिरेशन में एक ग्राफ है, तो आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है इसका प्रेशर कम हो जाता है और पहले नेगेटिव होता है और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी चेस्ट जो है वो एलिवेट होती है, बाहर को और ऊपर को उठती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो अंदर कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर कम हो रहा है। So इस प्रेशर इज बीइंग रिड्यूस। उसकी वजह से जो हार्ट की तरफ लाने वाली वेन्स हैं, ब्लड लाने वाली वेन्स हैं, उनका प्रेशर कम रह जाता है, उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और थोरेसिक कैविटी जहां पे कि राइट एट्रियम मौजूद है, जहां पे उन्होंने ब्लड लेके आना है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस कि venous return, यानी कि the blood brought by the veins to the right atrium, it increases, जिसकी वजह से which leads to, ये arrow मैंने इसलिए बनाया, which leads to increased atrial volume. Increased venous return leads to increased atrial volume, ठीक है। इसकी वजह से जब वॉल्यूम बढ़ता है एट्रिया में, तो एट्रिया में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं एंड एफरेंट सिग्नल्स थ्रू द वेगस नर्व्स टू द। अब जब ये स्टिमुलेशन होती है तो एफरेंट सिग्नल्स कहाँ कैसे जाते हैं? इन रिसेप्टर से, इन स्ट्रेच रिसेप्टर से एफरेंट सिग्नल्स जाते हैं थ्रू द वेगस नर्व टू द मिडल ऑफ द ब्रेन, दैट इज वेसोमोटर सेंटर, ठीक है, वहां पे जाते हैं और अगेन दे इंक्रीज द हार्ट रेट। दूसरा मैकेनिज्म, और इसके जो इफरेंट सिग्नल्स हैं they transmitted through vagal and sympathetic nerves, यानी कि अब वेसोमोटर सेंटर तक तो चले गए, अब वेसोमोटर सेंटर से आगे क्या चीज है? वो इफरेंट सिग्नल्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू वेगल एंड सिंपैथेटिक नर्व्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन। जैसे अभी हमने वो डायग्राम में देखा कि वेगस और सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं, वेगल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है और जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो हार्ट रेट पे उनका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो जब ये इफरेंट सिग्नल्स वापस आते हैं थ्रू वेगल एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, सो दे इंक्रीज द हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है जो हमने भी डिस्कस किया है, इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट 40 to 60% तक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नाउ एक दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है तो वो, क्योंकि जो एसए नोड है इट इज इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, तो वो जो एसए नोड पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है उसका, और जो स्ट्रेच आता है एसए नोड पे, उसकी वजह से 10 to 15% इंक्रीज इन हार्ट रेट उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म इसमें, तो ओवरऑल ये तीन मैकेनिज्म हैं, ठीक है, जो हमने भी डिस्कस किए हैं। वन इज दैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्साइटेशन, जो स्पेलेज होती है इंस्पिरेटरी सिग्नल्स की, वो वेसोमोटर सेंटर पे इफेक्ट करती है और हार्ट रेट बढ़ाती है। सेकेंड, लंग एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स आर स्टिमुलेटेड और वहां से इंपल्सेस अगेन वेसोमोटर सेंटर को जाती हैं, वेसोमोटर सेंटर से इंपल्सेस आगे थ्रू इफरेंट्स हार्ट पे जाती हैं और वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। वेन ब्रिज रिफ्लेक्स हमने कहा कि ये वॉल्यूम की वजह से एट्रियल वॉल्यूम बढ़ता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, एट्रियल वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कम हो जाता है। So more and more blood flows from the peripheral veins into the right atrium, which and what we call this increased venous return. So when there is increased venous return, there is increased atrial volume. When there is increased atrial volume, the stretch receptors in the wall of the atria are stimulated. और वहां से एफरेंट सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? वेसोमोटर सेंटर को, और इफरेंट सिग्नल्स वेसोमोटर सेंटर से दे गो टू दी हार्ट थ्रू वेगल एंड सिंपैथेटिक नर्व टू इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। और इसी तरह 10 to 15% इंक्रीज इन हार्ट रेट इज ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेचिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑन एसए नोड। एसए वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से एसए नोड पे जो डायरेक्ट स्ट्रेच आता है, because the SA node is in the right atrium, in the posterior wall of the right atrium. So the direct stretching effect on the SA node, it increases the heart rate by 10 to 15%. ठीक है? Okay. ये एक डायग्राम है जो कि गाइटन की नहीं है, ये जेपी की डायग्राम. I hate that book, but this diagram seems okay, and that's why I have included in my lecture. ये जेपी से देख लीजिएगा इसको, इस डायग्राम. इसमें हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो भी हमने पढ़ा है. ठीक है, ये देखिए, ये इंस्पिरेशन है एंड दिस वन इज एक्सपिरेशन. ठीक है, दिस इज इंस्पिरेशन, दिस इज एक्सपिरेशन. अब इसमें हमने क्या कहा था? इंस्पिरेशन में डिक्रीज इन इंट्रास्टैटिक प्रेशर, उसके आगे से दो
मैकेनिज्म्स चल रहे हैं। एक हमने क्या कहा था, इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम होता है, दूसरा हमने क्या कहा था, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न होता है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स, वेगल एफरेंट इंपल्सेस, इनहिबिशन ऑफ वेसोडाइलेटर एरिया। जब वेसोडाइलेटर एरिया इनहिबिट हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक्स इनहिबिट हो गए, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक्स क्या कॉज करते हैं, वेसोडाइलेशन एंड स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट। ठीक है, तो जब ये इनहिबिट हो गया तो इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक्स अपना काम करेंगे और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न। ठीक है, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न, इसी की वजह से डिक्रीज इन इंट्रासिस्टमिक प्रेशर, अभी हमने पूरा डिस्कस किया पीछे, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट होगा, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जो भी हमने पीछे किया, एंड दैट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ड्यूरिंग एक्सप्रेशन इसके टोटली अपोजिट होगा, टोटली इसके अपोजिट होगा, 100% अपोजिट। इसमें क्या दो मैकेनिज्म हुए, डिक्रीज इन वीनस रिटर्न, इसमें हमने कहा था इंक्रीज इन वीनस रिटर्न, इसमें डिक्रीज इन वीनस रिटर्न, नो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, तो उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि जो पैरासिम्पैथेटिक्स हैं वो भी अपना काम करेंगे और हार्ट रेट डिक्रीज रहेगा। इसी तरह इंक्रीज इन इंट्रास्टैटिक प्रेशर की वजह से डिक्रीज इन लंग वॉल्यूम हुआ, नो स्टिमुलेशन, क्योंकि जब हम एक्सपायर करते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन इंट्रास्टैटिक प्रेशर, sorry, the decrease in lung volume, decrease in lung volume and increase in intraspecific pressure. ठीक है, so decrease in lung volume, increase in intraspecific pressure, decrease in lung volume, no stimulation of stretch receptors in lungs, no vagal efferent impulses, no inhibition of vasodilator area. Totally इसका mirror image है, जो यहाँ हो रहा है उसका mirror image opposite यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम वहां से देख लेना, अच्छा फ्लो चार्ट है टू अंडरस्टैंड दीज मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये थे हमारे, एक्चुअली व्हाट वी स्टार्टेड वाज दैट रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमियास, ये थे हमारे, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है जी, टैकीकार्डिया मैं आपको बता चुका हूं, इट्स द कंडीशन इन विच हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, इमोशनल स्टेट्स हो सकती है, sudden excitement, it can be a bad news, it can be a good news। ठीक है, एक्सरसाइज, फीवर जनरली जो है उसमें अगर 1 डिग्री फॉर हीट चेंज ऑफ टेम्परेचर आए तो उसमें जो है वो 10 बीट्स पर मिनट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट जो है इट इंक्रीजेस बाय 10 बीट्स पर मिनट, एंड फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, वो फॉर हीट थी, अब सेंटीग्रेड चेंज, द हार्ट बीट विल गो अप बाय 18 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये इसका फीवर का इफेक्ट है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, व्हाट इज पेरिकार्डियम, is the covering, is the double layer covering around the heart। तो अगर इसके इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट बढ़ता है। हाइपरथायराइडिज्म मींस कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, तो इसमें भी क्योंकि थायराइड ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन्स जो है वो वैसे ही बॉडी के हर रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं, तो इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म जो है वो बढ़ाता है हार्ट रेट को, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड कॉजेस टैकीकार्डिया। इनटेक ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज करती हैं, और पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स वो होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अपोज करती है। ठीक है, इन बोथ दीज केसेस टैकीकार्डिया हो जाएगी। ठीक है, ये उसने दिखाया जी साइनस टैकीकार्डिया। अगेन इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि आरआर इंटरवल जो है ना वो रिलेटिवली कम है, छोटा है आरआर इंटरवल, फ्रॉम वन आर पीक टू द अदर आर पीक, ऑल दीज आर स्मॉलर देन नॉर्मल, सो दैट इज व्हाई इट इज अ ईसीजी ऑफ टैकीकार्डिया। ईसीजी में टैकीकार्डिया हमें इस तरह से नजर आए। ठीक है, ये भी वही है बेसिकली, ऊपर वाला नॉर्मल साइनस रिदम है, दिस वन इज नॉर्मल साइनस रिदम। ठीक है, और इनके 87 बीट्स पर मिनट आ रहा है, और इसमें जो है वो आप ये देखें आरआर इंटरवल इसमें ज्यादा है, ये नॉर्मल है, और ये क्योंकि ये नॉर्मल आ रहा है इसमें आरआर इंटरवल, और इसमें जो आरआर इंटरवल है वो स्मॉलर है,
ठीक है, इसलिए इसमें साइनस टैकीकार्डिया आ रहा है, यानी कि इसमें हार्ट रेट जो है वो तेज आ रहा है, ठीक है, और वो 140 बीट्स पर मिनट आ रहा है। सो एक जनरल प्रिंसिपल बस याद रख लो, आरआर इंटरवल छोटा होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, the smaller the RR interval, the more the heart rate. Indirectly proportional है एक दूसरे के, यानी RR interval और heart rate जो है they are indirectly proportional to each other. ठीक है, अच्छा, ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया वो कंडीशन है जैसे मैंने बताया कि जिसमें के हार्ट रेट जो है गोज बिलो 60 बीट्स पर मिनट। इसकी कॉजेज हो सकती हैं, उसमें हाइपरथायराइडिज्म था, इसमें हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, इसमें हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मींस उसमें फीवर था, यानी कि हाइपरथर्मिया था, इसमें हाइपोथर्मिया। सीवियर मेंटल डिप्रेशन, सीवियर मेंटल डिप्रेशन जो है वो भी कॉज कर सकती है। सीवियर मेंटल डिप्रेशन जो है इट कैन कॉज वेगल स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से कि ब्रेडिकार्डिया कॉज हो सकता है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियम में प्रेशर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसकी वजह से भी जो वेजोमोटर सेंटर है वो इस तरह से स्टिमुलेट होगा कि वो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर दे, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, जैसे टाइफाइड में होता है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है, ये क्लिनिकल बात है, इसको इस वक्त छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन बस आपको बता दिया कि वायरल और सर्टेन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। और आखिरी बात वही जो उसमें थी, इनटेक ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, या सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को अपोज करती हैं। ये उसका अपोजिट है, टोटली उसका अपोजिट है जो हमने पिछले में पढ़ा, ठीक है। ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है, देखो आरआर इंटरवल जो है वो काफी बड़ा हो गया है, सो इट मींस कि दिस इज साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ओके। एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? दिस इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हाउ एंड व्हाई, व्हाट इज द मैकेनिज्म? व्हाट हैपेंस इज कि जो एथलीट्स हैं उनमें खास तौर से जो स्ट्रेनस एथलीट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग, जो मैराथन एथलीट्स हैं, जो 2.5 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 10 मिनट की होती है मैराथन ऑलमोस्ट, आजकल शायद उसका टाइम कम हो चुका है, इंप्रूव कर गए एथलीट्स, उनकी फिजिकल कंडीशन इंप्रूव कर गई है, दे हैव ब्रॉट इट डाउन प्रोबेबली टू 2 hours and 3 minutes or something like that, but whatever it is still about 2 minutes, ठीक है। तो 2 hours अगर किसी ने भागना है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, और उसके हार्ट की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है। सो व्हेन देयर इज prolonged physical activity and strenuous physical activity, the heart becomes stronger. By stronger, what I mean is hypertrophy हो जाती है heart की, heart becomes hypertrophied, ठीक है। and there is, जब उसकी hypertrophy हो गई तो इसका मतलब है कि उसकी force of contraction बढ़ जाएगी। जब force of contraction बढ़ेगी तो उसका stroke volume भी बढ़ जाएगा। so there is permanent increase in the stroke volume, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो बड़ा हेल्पफुल है। इट इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग दी कार्डिक आउटपुट, बिकॉज एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है कि कार्डिक आउटपुट बढ़े, ठीक है। इट्स वेरी मच अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सरसाइज दैट द कार्डिक आउटपुट शुड इंक्रीज, बट इन रेस्टिंग स्टेट कार्डिक आउटपुट रिमेन्स द सेम। रेस्टिंग स्टेट में कार्डिक आउटपुट सेम रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो वो 5 लीटर रिक्वायर्ड है, जबकि एक्सरसाइज में मैराथन रनर्स के लिए या स्वेयर एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने वालों के लिए इट माइट गो अप टू 40 लीटर्स पर मिनट इंस्टेड ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट एट रेस्ट। द डिमांड माइट गो अप टू 35 to 40 लीटर्स पर मिनट। तो वो कैसे होगी? वो तभी मुमकिन है जब हार्ट स्ट्रॉन्गर होगा, जब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब उसकी पर मिनट कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, फिर ही होगा। लेकिन हमें ये कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड नहीं है एट रेस्ट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम तो बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड? बिकॉज देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है,
अब वो हाइपरट्रॉफी ये तो नहीं हो सकता कि वो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो ज्यादा हो जाए और जैसे हम रेस्ट पे आए वो कम हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो हाइपरट्रॉफी हुई है वो भी एक दिन करने से नहीं हुई, वो महीनों की मेहनत है जिसकी वजह से वो हाइपरट्रॉफी हुई। और अब फिर वो महीने ही लगेंगे, अगर आप महीने ही रेस्ट करें तो फिर वो हार्ट वापस उसी शेप में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। लेकिन हमें तो चाहिए कि जब हम 2 घंटे एक्सरसाइज करके हम रेस्ट पे आए हैं तो आर stroke volume and as a consequence cardiac output should decrease, ठीक है, and that should come to 5 liters per liter 5 liters per minute as compared to 35 or 30 or 40 liters per minute। तो वो कैसे होगा? तो अब इस फॉर्मूले में स्ट्रोक वॉल्यूम तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें चेंज बहुत कम आएगी, आएगी रेस्ट पे उसमें भी चेंज कम आएगी क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चली जाएगी। जो एक्सरसाइज में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आई थी और जिसने इसके बढ़ाया था फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को, वो गायब हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो मस्कुलेचर बढ़ चुका है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ी हुई है वो तो कम नहीं होगी। सो हाउ कैन वी ब्रिंग इट डाउन टू नॉर्मल? The only possible way is that we can decrease the heart rate। और नेचर ने इस बॉडी में ऐसा ही सिस्टम फिट किया हुआ, ठीक है, कि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता लेकिन हार्ट रेट कम हो जाता। सो इसीलिए जो स्ट्रेनरस एथलीट्स होते हैं इनमें अमूमन जो हार्ट रेट है वो वेल बिलो 60 होता है, बल्कि कईयों में बिलो 50 होता है, ठीक है, ठीक है। तो उनमें जो हार्ट रेट है strenuous athletes में it is well below 60 and in certain cases it is even below 60, oh sorry 50, it is below 60 50 even, ठीक है, ओके जी। तो ये था एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया। अब हम आते हैं ब्लॉक्स पे। हमने ब्लॉक्स की बात की थी कि सर्टन के एबनॉर्मल रिदम्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू सर्टन पार्ट्स ऑफ द हार्ट गेटिंग ब्लॉक्ड, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हार्ट में ब्लॉक्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है एंड हाउ डू दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स ऑन द ईसीजी, वो ईसीजी पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी साइनोएट्रियल ब्लॉक पे, ठीक है। साइनोएट्रियल ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो साइनोएट्रियल नोड है, the impulses coming out of the sinoatrial node, they are not going any further। उनको कहां जाना चाहिए था? उनको जाना चाहिए था एट्रियम। तो there is some pathology, कोई रीजन है जिसकी वजह से कि साइनोएट्रियल नोड से जो impulses निकल रही हैं they are not going anywhere, they are not getting out of the sinoatrial node into the atrial muscle, क्योंकि अगर वो एट्रियल मसल में जाएंगी तो वो एट्रियल डीपोलराइजेशन कॉज करेंगी, अगर वो एट्रियल डीपोलराइजेशन कॉज करेंगी तो वो कौन सी वेव कॉज करेंगी ईसीजी पे? पी वेव, ठीक है। तो अगर साइनोएट्रियल ब्लॉक हो तो हम क्या देखते हैं? व्हाट वी सी इज, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एस्टिनोडल ब्लॉक। ये हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, पी वेव आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, टी वेव आई, पी वेव आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, टी वेव आई, यहाँ पे एकदम पी साइनोएट्रियल ब्लॉक लगा। तो साइनोएट्रियल ब्लॉक अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया तो पी वेव गायब हो गई है, देखा, देयर इज नो पी वेव, ठीक है। सो दैट मींस कि फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स जितनी देर साइनोएट्रियल ब्लॉक रहेगा उतनी देर पी वेव नहीं आएगी। देखो यहाँ भी कोई पी वेव नहीं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पी वेव नहीं आ रही, ठीक है। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है ये सोचो, क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि जब एसए नोड अपना काम नहीं कर रहा तो हार्ट में कोई और some other part of the heart would take it up as an ectopic pacemaker, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा, ठीक है। सो देयर इज शिफ्ट ऑफ पेसमेकर, ठीक, इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कुछ देर के बाद, लेकिन जो पी वेव है वो नहीं आएगी क्योंकि एट्रियल डीपोलराइजेशन हो ही नहीं रही, एसए नोड से जो इंपल्स निकल रही है वो आ ही नहीं रही एट्रियम, एट्रियम में आएगी तो डीपोलराइज करेगी ना उसे,
वो एट्रियम में आ ही नहीं रही और फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना। सो इट मींस कि ना तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है और ना ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा बच्चे मेरी क्लास आज 1:30 बजे तक है, आज 1:30 बजे तक है। ठीक है, ओके। सो ये था साइनोएट्रियल ब्लॉक। ठीक है। अब साइनोएट्रियल ब्लॉक में ये हमने सारी चीजें यही अब हमने डिस्कस की। ब्लॉकेज इन एसए नोड, कार्डिक इंपल्स कैन नॉट कम आउट ऑफ द एसए नोड, impulse will not reach AV node and ventricles cannot receive cardiac impulse। ठीक है ना, आगे तो impulse जाएगी नहीं, एट्रिया में नहीं जा रही तो ventricles में कहां से जानी। ठीक है। They develop their own rhythm with impulse usually originating spontaneously in the AV node which would act as the ectopic pacemaker of the heart। So there will be no P wave in ECG। ठीक है। इसकी एक कॉज जो है, कोई साइनोएट्रियल नोड की और भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है, लेकिन एक कॉज इसकी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन, वो भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया साइनोएट्रियल ब्लॉक। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मोर इंपॉर्टेंट वंस आर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। कि एट्रिया एसए नोड से इंपल्स आ रही है, उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन आगे एवी नोड पे या उसके आगे एवी बंडल में ब्लॉक आ गया। ठीक है। जिसकी वजह से इंपल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा रही। साइनोएट्रियल नोड में तो इंपल्स एट्रिया में ही नहीं ना आ रही। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं आ रही। ठीक है। एट्रिया में आ रही है, वेंट्रिकल तक नहीं जा रही, क्योंकि एवी नोड में ब्लॉक है। अब एक बात याद रख लो, एवी नोडल डिले and AV nodal block, these are two entirely different things। AV nodal delay आपने पढ़ा cardiac impulse conduction, ठीक है, पढ़ा आपने वहां पे, that is a physiological phenomenon, वो AV nodal delay जो है, और उसकी importance है कि it allows the ventricle to be filled up completely before they can contract। ठीक है। वो तो एक physiological phenomenon है और एक beneficial phenomenon है जो AV nodal delay है। But this atrioventricular block is not a physiological phenomenon, this is a pathological phenomenon। अब इसकी severity डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस। ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स। तो इसमें एक आते हैं इनकम्प्लीट ब्लॉक्स और एक आता है कंप्लीट ब्लॉक। इनकम्प्लीट ब्लॉक्स में आगे दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। ठीक है। एक टाइप 1 ब्लॉक जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जो है वो इनकम्प्लीट ब्लॉक है, और टाइप 2 भी जो है वो भी इनकम्प्लीट ब्लॉक है। अब जो टाइप 2 इनकम्प्लीट ब्लॉक है उसकी आगे से फिर दो टाइप्स है। ठीक है। वो चलो वो आगे चल के करते हैं, हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम करते हैं टाइप 1 एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, यानी कि इनकम्प्लीट ब्लॉक में से टाइप 1। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एवी ब्लॉक। इसमें ब्लॉक तो जरूर आता है लेकिन वो ब्लॉक पार्शियल होता है, इनकम्प्लीट ब्लॉक है ना, हमने कहा इनकम्प्लीट ब्लॉक है। सो दैट मींस कि कुछ के इंपल्सेस डिले होती हैं और वो इतना इनकम्प्लीट होता है, इट्स सो इनसिग्निफिकेंट यू मे से दिस ब्लॉक कि वी डोंट इवन नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दैट, इसको हम बॉदर ही नहीं करते अगर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो। सो व्हाट हैपेंस इन दिस ब्लॉक इज कि इसमें इंपल्सेस डिले होती हैं। ऑल द एक बात ये सेंटेंस याद कर लो, all the impulses generated by the SA node, they are transferred or transmitted to the ventricles। They pass through the AV node and they are transferred or transmitted to the ventricles। यानी कि कोई बीट मिस नहीं होती बीच में से, कोई इंपल्स ड्रॉप नहीं होती। ठीक है। सारी इंपल्सेस आगे जाती हैं और बीट कॉज करती हैं, क्योंकि बीट हम लेते हैं वेंट्रिकुलर बीट से, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल द इंपल्सेस जनरेटेड बाय द एसए नोड आर ट्रांसमिटेड टू द
ventricles through AV node but at a slower rate. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमने ईसीजी में एक इंटरवल पढ़ा था पीआर इंटरवल, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसकी नॉर्मल रेंज थी 0.12 से 0.2 सेकेंड, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो प्रोलॉन्ग होके 0.2 सेकेंड से बढ़ के 0.25 भी हो सकता है, 0.30 भी हो सकता है, अमूमन 0.35 तक भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से इंसान रहता एसिम्प्टोमेटिक ही, क्योंकि कोई इंपल्स ड्रॉप नहीं हो रही, कोई बीट जो है वो मिस नहीं हो रही, इस वजह से इसको बॉदर नहीं किया जाता। इट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज अ पैथोलॉजी बट इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम ट्रीट भी नहीं करते बिकॉज इससे हमें कोई फर्दर आगे डेंजर नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रीट भी नहीं करते। तो ये है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, यानी कि फर्स्ट ऑफ द इनकम्प्लीट ब्लॉक्स, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। और इसमें हमने क्या कहा कि इसमें देयर इज स्लोनेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स ट्रांसमिशन स्लो हो जाती है, ऑल टुगेदर गायब नहीं होती, ठीक है, मिस नहीं होती, स्लो हो जाती है। और जो पीआर इंटरवल है वो बढ़ के 0.02 सेकेंड से बढ़ के 0.12 और 0.2 सेकेंड उसकी है रेंज, तो वो 0.2 सेकेंड से ऊपर चला जाता है, लेकिन बीट मिस नहीं होती, ठीक है। इसकी ईसीजी मैं आपको दिखाता हूं, वो ये है, ठीक है, ये इसकी ईसीजी देखिए, ये नॉर्मल है 0.16, जो हमने 0.12 और 0.20 का अगर आप मीन निकाल लें तो 0.16 आ जाता है, ये नॉर्मल पीआर इंटरवल, ठीक है। वैसे 0.2 भी नॉर्मल है और 0.12 भी नॉर्मल है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे हम 0.16 ले लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आप ये पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होकर देखो, ऑलमोस्ट 0.38 सेकंड्स तक चला गया, लेकिन कोई बीट ड्रॉप नहीं हो रही, पीआर इंटरवल जरूर बढ़ गया लेकिन बीट ड्रॉप नहीं हुई, ठीक है। ऑल द इंपल्सेस आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द वेंट्रिकल्स थ्रू एवी नोड, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसकी मैंने आपको कहा था कि इसकी भी आगे से दो टाइप्स है, ठीक है। इट इज अगेन एन इनकम्प्लीट ब्लॉक, पार्शियल ब्लॉक है, लेकिन इसकी भी आगे से दो टाइप्स है। वन इज मोबिट्स टाइप 1 एंड द अदर इज मोबिट्स 2, ठीक है। जो मोबिट्स 1 है उसको वंकेबैक फिनोमेनन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वंकेबैक फिनोमेनन, ठीक है। सो दिस वंकेबैक, अब हम इनको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। सो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की जो आगे दो टाइप्स हैं, द टू टाइप्स ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, दैट इज मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, देयर इज प्रोग्रेसिव प्रोलंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल इन सक्सेसिव हार्ट बीट्स टिल अ बीट इज ड्रॉप्ड। There is progressive prolongation of the PR interval in successive heartbeats till a beat is dropped. ये भी एसिम्प्टोमेटिक है, ये भी इसकी ये इट डज नॉट रिक्वायर द ट्रीटमेंट, इसके लिए भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब ये, इसकी पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, फिर आप ये देखें, ये है वंकेबैक फिनोमेनन। इसमें देखें क्या हो रहा है, पीवेवाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, अब ये पीआर इंटरवल जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है, द पीआर इंटरवल इज इंक्रीजिंग, पीआर इंटरवल बढ़ा, इसमें और बढ़ा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं, इस पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं, ठीक है, यानी कि एक बीट ड्रॉप हो गई, ठीक। ये भी पी वेव आई, ये भी पी वेव आई, ये भी, लेकिन इस दौरान में हुआ क्या, देयर इज प्रोग्रेसिव लेंथनिंग, यानी कि अगर से यहां पे ये 0.20 से बढ़ के 0.25 हो गया था, यहां पे ये 0.25 से बढ़ के 0.30 हो गया, यहां पे ये उससे बढ़ के 0.40 हो गया और बीट ड्रॉप हो गया, ठीक है। आगे देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना, ठीक है। सो इट मींस कि देयर इज प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल till the time comes that a QRS complex is missing, a beat is missing, a beat is dropped, ठीक है। So it means इसका डिफरेंस क्या हुआ उससे, टाइप 1 से, टाइप 1 से क्या डिफरेंस हुआ इसका,
इसका टाइप 1 से डिफरेंस ये हुआ, दो डिफरेंसेस हुए। एक तो ये कि इसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग है और अ टाइम कम्स व्हेन अ बीट ड्रॉप्स। इसमें बीट ड्रॉप हो गई है, उसमें बीट ड्रॉप नहीं हो रही थी, उसमें सारी इंपल्सेस जो एसए नोड से स्टार्ट हुई थी वो आगे वेंट्रिकल्स में गई थी, इसमें नहीं जा रही। ठीक है, इसमें बीच में आके एक ओकेजनल बीट ड्रॉप हो जाती, उसके बाद यही पैटर्न पुराना जो है नॉर्मल पीआर इंटरवल वाला वो रीसेट होता है और फिर वही दोबारा साइकिल प्रोलॉन्गिंग पीआर इंटरवल का बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, at rest if we take deep breaths does the heart rate increases? yes, बिल्कुल, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव प्रेशर अपनी इंट्राथोरेसिक कैविटी में, जिसकी वजह से वीनस फिलिंग ज्यादा, वीनस रिटर्न ज्यादा आएगा, एट्रियल फिलिंग ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, अच्छा, तो ये था वैंकेबैक फिनोमेनन, दैट इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1। इसको हम वैंकेबैक फिनोमेनन कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो हमने भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये भी मोबिस टाइप 1 है। ये देखो, देयर इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर इंटरवल, देयर इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ, देयर इज प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन। यानी कि अगर एक ईसीजी में, ये पहली ईसीजी जो आ रही है, इसमें अगर ये 0.25 था तो अगले में 0.32 हो गया, उससे अगले में 0.40 हो गया, ठीक है, उससे अगले में 0.43 हो गया और फिर एक बीट ड्रॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आगे गुंजाइश नहीं रहती ना ड्रॉप कम होने की, इससे आगे फिर बीट ड्रॉप ही होनी है। ठीक है, सो दैट्स द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन ये भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसको भी हम बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, इसको भी हम ट्रीट नहीं करते। ठीक है, so the main difference between the second degree heart block type 1 and first degree heart block is that there is no dropping of beat. एक बात, in the first degree heart block and in the first degree heart block there is no missing of impulse, all the impulses are transmitted from the atria to the ventricles. ठीक है, जबकि वैंकेबैक फिनोमेनन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें इंपल्स भी मिस होती है और बीट भी ड्रॉप होती है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, आफ्टर अ प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं मोबिट्स टाइप 2 पे। इसमें पीआर इंटरवल या तो परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग रहता है या वो नॉर्मल होता है। ये रहता कांस्टेंट इन लेंथ है, चाहे वो परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग्ड है, उसमें क्या था, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा था, हर ईसीजी के साथ बढ़ रहा था और फिर एक बीट ड्रॉप हो रही थी। इसमें जो है वो परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग्ड है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू बीट्स, रादर आफ्टर अ फ्यू पी वेव्स एक बीट आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एवी नोड जो है वो इट बिकम्स कंप्लीटली रिफ्रैक्टरी टू कंडक्शन ऑफ एन ऑन एन इंटरमिटेंट बेसिस। इंटरमिटेंट बेसिस का क्या मतलब होता है कि कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, इंटरमिटेंट, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, ऑन ऑफ मैकेनिज्म सा लग जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता, वक्फे वक्फे से। इंटरमिटेंट का जो असल उर्दू में मतलब है दैट इज वक्फे वक्फे से। ठीक है, ऑन एन इंटरमिटेंट बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी सेकेंड और थर्ड इंपल्स इज कंडक्टेड, यानी कि पी वेव आई लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, अगली पी वेव आई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, अगली पी वेव आई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। ठीक है, और फिर चौथी पी वेव आई और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। सो दैट मींस कि दैट वुड बी अ 3-to-1 रिदम, यानी कि 3 पी वेव्स आई और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया। इसी तरह अगर 2 पी वेव्स आए और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आए तो इसे हम 2-to-1 रिदम कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि इट कैन लीड टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें हमें ये एप्रीहेंशन आना शुरू हो जाता है कि इट कैन लीड टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूं, ये है इसकी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2। इसमें देखो क्या हो रहा है, पी वेव आई,
QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया, P wave आई, QRS कॉम्प्लेक्स आया, तो आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, आफ्टर 2 P waves देयर इज 1 QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे ब्लॉक लग गया, ये P wave आई, यहां तो QRS कॉम्प्लेक्स था इस P wave के बाद, इस P wave के बाद यहां ब्लॉक लग गया, ये ब्लॉक परसिस्ट किया, ये P wave आई, इसके बाद फिर आ गया, यानी कि 2 P waves के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स आया, तो इट इज 2 to 1 रिदम। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पे एक और P wave गुजर जाए, यहां भी QRS कॉम्प्लेक्स ना आए और इस P wave के बाद आए, तो इसका मतलब है 1 2 3 3 P waves के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स आएगा, इट इज 3 to 1 रिदम। ठीक है, दिस इज Morbid's टाइप 2। अब Morbid's टाइप 2 और Morbid's टाइप 1 में क्या डिफरेंस है, बीट तो दोनों में ड्रॉप हो रही है, ठीक है, उसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। फर्क ये है कि उसमें ओकेजनल है, उसमें कोई रेगुलर सेट पैटर्न नहीं है बीट के ड्रॉप होने का। बच्चे कुदसिया याकूब, what I can say is that I have got no command over it. It's not in my control. You need to talk to admin. That's all. That's all what I can say. I have no command or control over it. I cannot reduce it. I cannot enhance it. I cannot do it. It's just out of my control. It's not my domain. Okay, I asked about posture. Suppose we are lying down facing downward. So what will that do? What are you actually looking for? Sawal gandam jawab chana. And what was the sawal? Didn't you say कि अगर हम, what was that? Can I go back on this? Is there any effect of body posture on the heart rate? Mr. Sawal Chandam, Sawal kya gandam jawab chana, Mamoon Ahmed Khan Saab, my humble request would be that if I would have seen this beautiful writing of yours, I would have answered it right away. ठीक है, पोस्चर का हार्ट रेट पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, रिमेंबर इट। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट एट ऑल। एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग दीज वियर्ड सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस। So then don't do it. Don't talk to each other then. Okay? Okay. So we get back to that. So this second degree heart block, Morbid's type 2 and Morbid's type 1, that is the two types of second degree heart block. The major difference is that in Morbid's type 1, we do not need a treatment. It's not a serious condition. Though there is an occasional beat drop, but that is only occasional. In Morbid's type 2, it's a regular pattern. Either it's a 2 to 1 rhythm or it's a 3 to 1 rhythm. And the apprehension is, the problem is that it can lead to what? It can lead to dangerous arrhythmias. It can lead to third degree heart block, right? So what is the treatment? Treatment for this would be a pacemaker. Treatment for this would be a pacemaker. Okay. 35 हो गए, 5 मिनट ऊपर हो गए यार, और 5 मिनट ले ना लूँ, 5 ले लूँ तो बेहतर। Okay, so I'll come back to the T wave afterwards because this is actually not in your course. It was just something extra that I had included. So I'll come to it later, right? In the next lecture if I get the opportunity. Today, what I want to do is that I want to finish the third degree heart block, right? Because our blocks should at least be over today, right? Otherwise, I would be in trouble. And I'll come back to the TA wave because that is interesting. Okay, so complete heart block. Those two, the first degree heart block and second degree heart block, those were the partial or incomplete heart blocks. This third degree heart block is complete heart block. Now,
here no impulse is conducted from atria to the ventricles. The same is true for the sinoatrial node, the sinoatrial block, that no impulse is conducted from the atria to the ventricles. But in sinoatrial block, no impulse is conducted even to the atria as well. उसमें तो एट्रिया पे भी इंपल्स नहीं जाता, ठीक है, ओके, उसमें भी वेंट्रिकल्स अपना रिदम डेवलप करते हैं, ठीक है, इसमें भी वेंट्रिकल्स अपना रिदम डेवलप करते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादातर रिदम जो है वो एवी नोड क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है, एवी नोड जो है वो ब्लॉक नहीं होता, इसलिए उसमें अक्सर जो नेक्स्ट एक्टोपिक फोकस एक्टोपिक जो बनता है पेसमेकर वो एवी नोड बनता है. बट इन दिस एवी नोड तो खुद ब्लॉक्ड है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, इसलिए एवी नोड जो है वो नहीं हो सकता. एवी बंडल का लेटर पार्ट या फिर आगे कोई बंडल ब्रांच या फिर आगे जो हैं प्रेकेंजिया फाइबर्स वो अपना रिदम डेवलप करते हैं और वो फिर उससे भी कम होता है क्योंकि एवी नोड का तो 40 तक होता है, ठीक है, 40 to 60 होता है, लेकिन जो आगे चीजें हैं, ये जो प्रेकेंजिया फाइबर्स हैं, जो बंडल ब्रांचेस हैं, इनका तो 20 to 40 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है. तो कंप्लीट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, कंप्लीट थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है, इसमें नो इम्पल्सेस कंडक्टेड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. जबकि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई भी इम्पल्स ड्रॉप नहीं हो रही थी, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ओकेजनल ब्लॉकेज थी, ओकेजनल ड्रॉप था, और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की सेकेंड टाइप में मॉर्बिडस टाइप 2 में रेगुलर पैटर्न था बीट्स के ड्रॉप होने, और आफ्टर 2 और आफ्टर 3 पी वेव्स एक बीट आ रही थी, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बीट आगे नहीं जा रही, ठीक है. सो द एट्रिया बीट अकॉर्डिंग टू रिदम ऑफ एट्रिया, तो एसए नोड के रिदम के मुताबिक चलेंगे क्योंकि एसए नोड में कोई इश्यू नहीं है, एसए नोड अपनी इंपल्सेस दे रहा है और वो एट्रिया में जा रही है, तो एट्रिया अपने रिदम के मुताबिक चलेंगे, और वेंट्रिकल्स तक क्योंकि वो रिदम पहुंच नहीं रहा, इसलिए द वेंट्रिकल्स वुड बीट एट देयर ओन रिदम, ठीक है, जो या तो एवी बंडल से शुरू हुआ या बंडल ब्रांचेस में से किसी से शुरू हुआ या प्रेकेंजिया फाइबर से शुरू हुआ, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक चलेंगे. ईसीजी में क्या होगा? सो इट मींस, पहली बात तो ये हो गई कि क्योंकि एट्रिया अपने रिदम पे चल रहे हैं, वेंट्रिकल्स अपने रिदम पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं है, उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है. सो देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. पी वेव्स ज्यादा होंगी ऑफ कोर्स क्योंकि पी वेव तो चल रही हैं एसए नोड के रिदम पे, और एसए नोड का रिदम जो है वो तो 80 से 100 तक भी हो सकता है, ठीक है, जबकि जो वेंट्रिकुलर रिदम है वो इस वक्त चल रहा है प्रेकेंजिया फाइबर्स, और प्रेकेंजिया फाइबर्स का रिदम तो मैक्सिमम 40 तक हो सकता है, ठीक है. सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन पी वेव एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है. ये है कंप्लीट एवी ब्लॉक, ठीक. इसमें पी वेव तो आ रही है, पी वेव आ रही है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बीच में से मिसिंग है, और कोई एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है. ये क्यों आ रहा है? ये उस इंपल्स की वजह से नहीं आ रहा जो एसए नोड से जनरेट हुई थी, ये उस इंपल्स की वजह से आ रहा है जो वेंट्रिकल्स ने खुद जनरेट किया है या प्रेकेंजिया फाइबर्स ने जनरेट की है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द पी वेव्स एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अच्छा, ये भी वही है, ठीक है. इसमें देखिए उसने बताया कि एट्रियल रेट जो 107 पे चल रहा है और वेंट्रिकुलर रेट जो 43 पे चल रहा है, ठीक. सो देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया. अच्छा, अब मेरे ख्याल में स्टोक्स एडम सिंड्रोम नहीं आज शुरू करता बच्चे, ये मैं अगले में शुरू करूँ, बिकॉज स्टोक्स एडम सिंड्रोम इट रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. ये मैं आज नहीं शुरू कर सकता, कि मैं आज शुरू करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके. सो आई विल से गुड बाय, ठीक है, एंड वी विल मीट अगेन डे आफ्टर टुमारो फ्रॉम 12 to 1. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.